میرا مطلب ہے پپا آرمی میں تھے، پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پر رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پر سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش سی ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پر حیران تھی۔ ممی آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا نل بھی۔ پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر سے وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پپو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اسی لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دروازے سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سم دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈیجے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا۔ پپو آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا، اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی اور جہان راہداری کے اس پار سے اسے پکار رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی؟ وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک ادھ کھلے گلابوں کا بکے اور سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روک کے ان سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا ایڈریس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ اور کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھے گئی جس پر لکھے حروف نمایاں تھے۔ For my love, حیا سلیمان from your Valentine۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے، اسے یاد تھا۔ یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہان اب ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھا گئی تھی۔ دفعتاً میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا، بیٹھو بیٹا۔ پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے، شاید۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی ہی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے۔ ڈور میٹ پہ اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئر کمپنی کی رسید تھی۔
गालबन शायद जहान ने दस्तखत करके वहीं फेंक दी थी। वो रसीद उलट पुलट कर देखती तेज कदमों से गेट अबूर कर गई। वो फूल आज ही की तारीख में किसी AR ने बुक करवाए थे। A से अहमद और R से। वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक इसके हाथ पे थी। वो घंटा पहले खुद इस बात से नावाकिफ थी कि वो जहांगीर से आ रही है, फिर इस AR को कैसे इल्म हो गया? क्या वो इसका पीछा कर रहा था? क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने ज़राए कैसे हो सकते थे? सिर्फ इसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पर नर्स बेंच पर बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ से ढकी घास पे जमी थी। इसे हाले के आने तक यहीं बैठना था। इसने अगले रोज ही डॉर्म ऑफिसर हकान से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया था। अब वो डीजे के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। कमरे में तीसरी लड़की एक चीनी नैयाद लिंग लिंग थी। इसका पूरा नाम इतना लंबा और पेचीदा था कि इसने यूरोप के लिए अपना नाम चेरी रख लिया था। वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी और PhD कर रही थी। चौथी लड़की एक इसराइली यहूदी टाली थी, वाक़ितन टाली के दरख्त की तरह लंबी चौड़ी और घुंघराली बालों वाली। वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट थी। इसके साथ वाले कमरे के फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट, वो फ़लस्तीनी लड़के जिनका जिक्र डीजे ने पहले रोज़ ही किया था, और वो इसराइली लड़की हर जगह साथ साथ नजर आते थे। कैंपस की सीढ़ियां हो या हॉस्टल का कॉमन रूम, वो चारों साथ ही होते थे। इनके पासपोर्ट चेक करवाओ, या तो वो इसराइली नहीं या वो फ़लस्तीनी नहीं। ना इत्तेहाद और दोस्ती, तौबा है भाई। डीजे जब भी इनको साथ देखकर आती यूं ही कुड़ती रहती। हया ने अभी इन लड़कों को नहीं देखा था, ना ही इसे शौक था। तमाम ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट पीर तक पहुंच गए थे। वहाँ किसी को किसी एक्सचेंज स्टूडेंट का नाम मालूम नहीं था। बस ये फ़लस्तीनी है या चाइनीज़ या नाइजीरियन या डच, और ये दोनों पाकिस्तानी हैं। इनको 1 से 4 मज़ामीन लेने का इख्तियार था। डीजे ने 2 लिए जबकि हया ने 4। चौथे माह के इख्तिताम पर इम्तिहान देने की पाबंदी थी, और ये 5 माह लाजमन तुर्की में गुजारने की पाबंदी थी। बाकी चाहे हॉस्टल में रहो चाहे ना रहो, चाहे सारी रात बाहर गुजार कर आओ, कोई पूछने वाला न था। खूब मजे थे। सबांजी में क्लास के अंदर लड़कियों के स्कार्फ पर पाबंदी थी। तो ये हाले नूर क्या करती होगी? हया ने डीजे से तब पूछा जब वो दोनों नमाज के बहाने क्लास में दिखाई जाने वाली तुर्की की तारुफी प्रेजेंटेशन में खिसक कर आ गई थी, और अब प्रेयर हॉल में बैठी चिप्स खा रही थी। वो क्लास में स्कार्फ उतार के ही जाती है। डीजे चिप्स को उतरते हुए बता रही थी। वो दोनों चौकड़ी मारकर कारपेट पर बैठी थी। एक तरफ अलमारी में कुरान और इस्लामी कुतब के नुस्खे सजे थे, दूसरी तरफ बहुत से स्कार्फ्स और स्कर्ट्स टंगे हुए थे। जीन्स वाली तुर्क लड़कियां स्कर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेती। इस्तांबुल के हर जनाना प्रेयर हॉल में ऐसे स्कार्फ और स्कर्ट्स लटके हुए थे। मजे की है वैसे ये हाले नूर भी। वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी। इसने भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में ताया फुरकान की डांट की डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुक्र के यहाँ वो लोग नहीं थे, और वो जिंदगी को अपनी मर्जी से लुत्फ अंदोज होकर गुजार रही थी। परसों तुम अपनी फूफो के घर गई थी, कैसा ट्रिप रहा? अच्छा रहा। फूफो ने पुलाव बनाया था। वो वाकई इतना बदमज़ा पकवान नहीं था जितना हम समझते हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी। जब प्रेयर हॉल में भी खूब बोर हो गए तो बाहर निकल आए। सर्द नम हवा धीमी सी लय में बह रही थी। हरी घास पे सबांजी की गोल सी इमारत पूरे वकार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गुलाई की शक्ल में बने घर को हैट पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दाखिली दरवाजे के सामने सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के दोनों तरफ सब्जा फैला था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थी जब डीजे ने इसका शाना हिलाया। ये जो आखिरी सीने पे 3 लड़के खड़े हैं, ये वही फलस्तीनी लड़के हैं। देखो, टाली भी इनके साथ है। इसने हवा से चेहरे पे आते बाल पीछे हटाए और देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ थे। आओ इनसे मिलने चलते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे जरा काम है। वो खट खट जीने उतरती आगे बढ़ गई।
बीजे ने इसे नहीं पुकारा, वो इन फलस्तीनियों की जानिब चली गई और वो यही चाहती थी। बीजे से दोस्ती अपनी जगह, मगर फिलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा। करीबन घंटे भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पर चलने लगी। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता सुर्ख कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची सुर्ख पेंसिल हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पर उड़ रहे थे। गहरे काजल के साथ रसबरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। इसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज इसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल जोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। सबांजी की हीरोइन गुरसल थी। गुरसल बस सर्विस वो सबांजी के तलबा के लिए ही चलाई जाती थी और इन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने इसे गुरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गुरसल छूटी तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी, इसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गुरसल अपने मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा तखीर नहीं करती थी और अगर आप चंद सेकंड भी देर से आए तो गुरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गुरसल का इंतजार करें। जब वो गुरसल में बैठी तो आसमान पर सया बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गुरसल ने बासफोरस का अजीम शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी और जब वो टाक्सिम स्क्वायर पर उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। टाक्सिम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकजी चौक था। वहाँ ऐन वस्त में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्मे नस्ब थे। मुजस्मा आज़ादी एक तरफ हरा भरा सा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का ज़ेर ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे इस पर गिर रहे थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पर ऊंची हील से चलना दुश्वार हो गया था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियां सामने ही थी। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दहाने तक पहुंची ही थी कि चटक की आवाज आई। वो लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। इसके दाएं सैंडल के हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका सा हुआ था। इसने खपत से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ अंदाज में छतरियां ताने गुजर रहे थे। शुक्र कि किसी ने देखा नहीं था। बारिश इसी तरह बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत में चेहरे के अतराफ में चिपक गए थे। इसने कोफ्त से टूटे हुए जूते के साथ जीना उतरना चाहा, मगर ये नामुमकिन था। झुंझलाकर वो झुकी, दोनों जूतों के स्ट्रैप्स खोले, पाँव इनमें से निकाले और जूते स्ट्रैप से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया था। वो भागते हुए नंगे पांव जीने उतरने लगी। इसके पहलू में गिरे हाथ से लटके दोनों जूते इधर उधर झूल रहे थे। मेट्रो का टिकट 1.5 लिरा का था। चाहे जिस स्टेशन पे भी उतरो, वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस करने से पहले मोतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थीं। खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। इसकी नजर कोने की खाली नशिस्त पर थी, मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने की नशिस्त पर बैठा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके बैठते ही दम से इसके बराबर की जगह पे आ बैठी। वो सया सूट में मलबूस शख्स शनासा सा लगा। लम्हे भर को इसका सांस रुक गया। वो जिहान सिकंदर था।